those who have from very good institutions, अभी जैसे आईआईटी मुंबई से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे, आईआईटी बीएचयू से बहुत लोग जुड़े हैं, आईआईटी मद्रास से जुड़े हैं, तो दोज पीपल हैव दैट थॉट, मे बी वो बाहर रहकर आए हैं, उन्होंने बैंगलोर वगैरह का देखा हुआ है एंड वो शिफ्ट कर कर आ रहे हैं, तो उनमें थोड़ा वो जो है ना स्केलेबल बिजनेस और वो है कि हमें टेक्नोलॉजी लिवरेज करके दूर दूर तक अपने आप को एक्सपैंड करना है, करोड़ों का बिजनेस बनाना है, तो वो चीज बहुत कुछ लोगों में अभी है। ठीक है, बाकी जो अभी नए जो बडिंग है उनमें वो सोच अभी आना बचा है, हम लोग अपने प्रयासरत हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि अब वो चीजें भी ना वी ट्राई टू गिव। तो पहला चैलेंज तो क्वालिटी, दैट इनोवेशन आए, डीप टेक को यूटिलाइज करके कुछ कर पाए बच्चे। Thanks a lot for taking the time. Yes. And I'm very privileged to have you on the podcast. Just to give you a background, we started this podcast to highlight some of the key figures in shaping the city of Kota, which we are all part of, and not only for the present but also for future, and shaping from various walks of life. For example, politics, social service, administration, commerce, economics, technology. So we identified you that you are contributing directly to this cause, and we wanted to spend some time with you to chat further. And thanks a lot for being on the podcast. And let's begin with maybe a little bit of introduction about you and what you do as part of iStart and what is it about. Thank you, Pallav, for the invite. It is a pleasure connecting with you. Parth, thanks a lot, and having me in the list of people who are contributing. That is a great honor for me. And I am Dr. Rohini Sharma. And a brief background about me. I have basically, I did my PhD postdoc. Postdoc I have done from NIT Rourkela. And thereafter, I have taught in NIT Rourkela, and I was teaching subjects like technology and innovation management. I was teaching entrepreneurship development. And that's where I got the first exposure to what incubators are about, what is startup ecosystem. There was a book that I was referring to, and in that they were talking about early incubators in US, right? And how it contributed to industrialization of US or those cities in which the early incubators came, how mini tool rooms were there, fab labs were there, which were contributing to innovation and entrepreneurship. And then the book also talked about innovation network like Silicon Valley and all that. So that first exposure, first exposure to this I got through by teaching in NIT Rourkela and the subjects like technology and innovation management. Thereafter, after teaching 2 years, I got an opportunity because NIT Rourkela was coming up with the Technology Business Incubator, TBI. And at that time, my professors gave me the opportunity that why don't you work out there? So it was a 1 lakh square feet facility, a very big facility, and from scratch, from one table and chair, we started. And thereafter, we got it populated. We started with pre-incubation programs, and many type of exposure I got during that my stint in NIT Rourkela. And there I worked more than 3.5 years. So nice. that, nice. yeah, I have a lot of questions. I will keep switching between English and Hindi for our intended audience as well, because we also know that there are a lot of Hindi speakers in Kota and around surrounding areas as well. तो आपने अपनी शुरुआत NIT से की. अक्सर NIT, IIT, IIM ये सब इंडिया में माने जाते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स. तो एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करें तो ऐसे इंस्टीट्यूट का कितना इंपॉर्टेंट, ऐसी ब्रांड या इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या सिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बाकी इंस्टीट्यूट से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है? पल्लव, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे तो मौका मिला कि मैंने NIT में काम किया, उसके बाद IIM का सोशल इंक्यूबेटर भी हेड किया मैंने. IIM लखनऊ का सोशल इंक्यूबेटर था SciFi, तो दैट आल्सो आई हेडेड. तो वहां पे क्वालिटी, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, NIT की अगर बात करूं तो 6000 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 21 डिपार्टमेंट्स थे, और राइट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, जो प्योर मैकेनिकल, सिविल,
कंप्यूटर साइंस के अलावा भी बहुत था, सिरेमिक वाज देयर, अपार्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक, बायोमेड, बहुत सारे ब्रांचेस थे वहां पे। तो वहां पे मुझे बहुत तरह के बच्चे, बहुत सारे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। उसके अलावा वहां पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, राइट, रोबोटिक्स क्लब्स हो गया, वेरियस आर्ट कल्चर एवरीथिंग। तो व्हाट आई सेड कि बहुत सारे क्वालिटी स्टूडेंट्स के साथ काम करने से एंड दे गॉट इंटरेस्टेड, राइट, वी वर डूइंग आउटरीच प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे बच्चे जो थे थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से दे स्टार्टेड विद सम टाइप ऑफ आइडियाज एंड वी वर सपोर्टिंग देम कि भाई हमारे पास इतना बड़ा प्री इंक्यूबेशन स्पेस है, आओ बैठो काम करो। तो बडिंग आइडियाज वहां से आने शुरू हो गए। तो मैंने देखा कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी हो गया, एनआईटीज हो गया, आईआईएम्स हो गया, वहां पे 2016 ऑनवर्ड्स यू विल सी कि सब जगह इंक्यूबेटर्स आना शुरू हो गए थे, राइट। और ये हुआ जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया उसके जस्ट बाद से। अच्छा, ये जो पॉलिसी आया, और बहुत सारा, लाइक फॉर एग्जांपल डीएसटी फंडेड अस, राइट। एनआईटी में आपको देखो 5 करोड़, 3 करोड़ इस टाइप के मनी दे हैड इन्वेस्टेड कि आप एक इंक्यूबेटर खोलो। और अब आप देखोगे कि बहुत दूसरे दूसरे कॉलेजेस, ट्रिपल आईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, एनआईटीज, सब में मोर और लेस यू विल गेट कि इंक्यूबेटर्स आर देयर। मतलब बेसिकली क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ द रिसोर्स भी मैटर करता है। कि आपने बोला जैसे कि काफी सारी फंडिंग और फ्री इंक्यूबेशन स्पेस, डेस्क काम करने के लिए, आई थिंक ये सब रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये क्लियरली एक पॉइंट आप बोल रहे हैं कि विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बड़े इंस्टीट्यूट्स में। करेक्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट, एक्सपोजर आपको और जो हाँ, और क्या आपको लगता है, क्योंकि ये डिबेट काफी, मतलब आई थिंक कभी ना खत्म होने वाली डिबेट है। अक्सर बोला जाता है कि क्या आपको बिजनेस, एक सक्सेसफुल मैन और बिजनेस वुमेन बनने के लिए क्या इंस्टीट्यूट या पढ़ाई या डिग्री मैटर करती है या नहीं करती है? अक्सर काफी लोग डिबेट करते रहते हैं, है ना। और अक्सर जो फॉर एंड अगेंस्ट में इसके रहते हैं, वो आप देखेंगे कि खुद भी उन्हीं बैकग्राउंड से आए हैं, ना। एक कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अगर वो उसने पढ़ाई थोड़ी बहुत ही की है बट सब कुछ ऑन द ग्राउंड सीखा है, तो ऑब्वियसली वो उस पॉइंट को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इस डिबेट में आपका क्या कहना है? सबसे पहले जब भी मैं जाती हूँ पल्लव, तो आई शो वन स्लाइड, राइट। एक सबसे पहला जो स्लाइड होता है उसमें सबसे पहला जो फोटोग्राफ होता है वो धीरू भाई अंबानी जी का होता है, राइट। तो जब मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूं तो ही डिडंट हैड एनी फॉर्मल डिग्री या बहुत हाई फाई डिग्री तो थी नहीं उनके पास। बट नाउ इफ यू सी हिज रिलायंस किस मुकाम तक पहुंच गया है, राइट। अगर मैं रूमा देवी, इफ यू हैव हर्ड हर नेम, शी इज फ्रॉम राजस्थान, राइट, एंड शी वाज 8th क्लास पास, बस 8वीं कक्षा पास है। और उनको भी गांव में रहकर अभी शी हैज कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आई डोंट थिंक कि दैट डिग्री फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। जुनून बहुत जरूरत है कि जुनून, दैट सेल्फ ड्राइव, दैट कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजों की ज्यादा आवश्यकता होती है। दैट innovative thinking, passion, perseverance, those resilience, ये सारी चीजों की ज्यादा आवश्यकता है rather than degree। तो आप एनआईटी और आईएम के ऐसे रिच एक्सपीरियंस के बाद कोटा का, मतलब कोटा में कैसे आप लैंड किए, वो थोड़ा सा उस पे बताएं। माय हस्बैंड हैज ट्रांसफरेबल जॉब, पहला चीज। और हमने ट्रांसफर यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हो कि कोटा इज अ कोचिंग हब, तो आई हैव 2 किड्स और दोनों बच्चे अब कोटा से ही पढ़े हैं। तो आई हैड कम बेसिकली फॉर दैट पर्पस, पढ़ाई के चक्कर में। अच्छा, और अभी आप ये बताएं कि यहाँ पे आप जो अपने स्टार्टअप एक्सपीरियंस है उसको कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोटा में। मैंने सुना आपके बारे में आई स्टार्ट से आप जुड़े हुए हैं, शायद आप और भी इनिशिएटिव्स करते हैं इसके अलावा। तो थोड़ा सा वो बताएं कि how are you bringing all that rich data and knowledge to where you are currently? Correct. So जब मैं राजस्थान आई तो I wanted to work in this ecosystem, startup ecosystem. I have that teaching experience also, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, डॉक्टर स्कॉलर्स को पढ़ाया। बट इसमें मजा है, राइट, एक कम्युनिटी बिल्ड करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करना, और बहुत अच्छा लगता है कि यू आर बिल्डिंग नेशन, यू आर हेल्पिंग इन
हैविंग स्टार्टअप्स, उनको प्रमोट करके, और मैंने देखा है उनका 0 से करोड़ तक की, करोड़ों की जर्नी को मैंने पहले भी देखा, एनआईटी में देखा, आईआईएम में देखा, और अब यहाँ भी देख रही हूँ, तो दैट एक्साइट्स मी, राइट। और जब मैं यहाँ पर आई तो ऑलरेडी आई हैड अ फेयर नॉलेज कि कैसे इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, ऑलरेडी आई हैड डन इन 2 डिफरेंट प्लेसेस, तो वो तो मुझे पता। फिर मैं हूँ और मेरे साथ एक को मेंटर है आयुष, तो हम दोनों ने लिस्ट निकाले सबसे पहले, राइट। पहले तो आई स्टार्ट में जो भी कभी भी एनरोल हुआ था, रजिस्टर हुआ था, उसका लिस्ट निकाला। वी एडेड कि चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, राइट। तो उसमें हमें करीब 60-70 लोगों का लिस्ट मिला था, तो हमने सबको कॉल करा, राइट। उसके बाद वी स्टार्टेड कि उससे जो 20-25 लोग हमें मिल पाए, वी स्टार्टेड विद दैट। उसके बाद हमने डीपीआईआईटी, जो डीपीआईआईटी है ना सेंटर पे, उसका लिस्ट निकाला हमने थ्रू द साइट, और वहां पे कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा, इसमें जो भी स्टार्टअप्स थे उन सबको हमने एक एक करके कॉल करा। और कॉल करके तो हमारा टारगेट था कि 50 लोग तो जुड़ जाने चाहिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट। जुड़ने का क्या मायना है? कुछ कोई एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर कोई कुछ प्राइज मनी मिलती है उसके एंड में, मतलब वो थोड़ा सा उस पे बताएं कि मैं उस पे मतलब भी क्या आती जुड़ने हूँ। मतलब हाउ वी स्टार्टेड, आई एम जस्ट अभी शुरू किया मैंने, कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शुरू किया, और जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम आई स्टार्ट राजस्थान प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहे हैं। आई स्टार्ट राजस्थान प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, और ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। तो इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होता है, और फिर उसके साथ एडेड फॉर एग्जांपल वेल्थ क्रिएशन, एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे नेशन बिल्डिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो ऑलरेडी प्रोग्राम वाज इन प्लेस व्हेन आई जॉइंड, एंड यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट हम लोग, हर तरह का 360 डिग्री सपोर्ट आप कह सकते हो कि वी आर गिविंग टू द स्टार्टअप्स। इसमें अगर आप देखोगे तो राइट फ्रॉम इंक्यूबेशन स्पेस, फ्री वर्किंग स्पेसेस दे रहे हैं। इसके अलावा आपको सेकंड में फंडिंग बहुत अच्छी है पल्लव। फंडिंग की बात करें तो आइडिएशन ग्रांट है 2,40,000 की। इसके अलावा वायबिलिटी ग्रांट है जो 10 से लेके 60 लाख तक जा सकती है, दैट इज ग्रांट, ऑलराइट। इसके अलावा ग्रोथ फंड्स आर देयर, जो कि 2 तरीके का है। एक है स्टार्टअप फंड, जिसमें कि ग्रोथ फंड इज देयर, तो उसमें आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक मिल सकती है इफ यू हैव रेज्ड मनी फ्रॉम सम इन्वेस्टर। अगर आपने पैसे रेज किए हुए हैं तो आपको उसका हाफ 50% ऑफ व्हाट यू हैव रेज्ड, एंड मैक्सिमम इज 2 करोड़ तक हम लोग का जाता है, ऑलराइट। देन वी हैव गॉट स्टार्टअप इक्विटी फंड एज वेल, जो कि मैचिंग ग्रांट है, जितना आपने रेज किया है इसमें आपको इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ सकता है, और ये 5 करोड़ तक जाता है। तो वी हैव फंडिंग ऑप्शंस फ्रॉम 2,40,000 to 5 crore in iStart Rajasthan. वाह, अच्छा। तो आपने बताया कि 2,40,000 से लेकर 5 करोड़ तक की राशि मिल सकती है स्टार्टअप्स या आइडियाज को। मतलब कितना, मतलब जब हम सोचते हैं, या कोई भी यंगस्टर है जो पढ़ा लिखा है या इंजीनियर है या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, बैंगलोर में, दिल्ली में, जनरली कोटा का नाम पहले नंबर पे या उस तरीके से नहीं आता है जिस तरह से बाकी सिटीज का आता है ना। पूना भी ले लें, आप पूना ले लें, जयपुर भी ले लें शायद ना। तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है? मतलब ऑब्वियसली ग्राउंड पे भी आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप लोग ग्राउंड में देख रहे हैं आइडियाज जनरेट होते हुए, लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, बट जनरली जो 25 इयर्स ऑनवर्ड्स वाले जो ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग ना बाहर का एक्सपोजर है, जिनको पढ़े लिखे हैं, कंपनीज में काम किया है, ऐसे आइडियाज के साथ भी काम किया है, उन लोग का जनरली परसेप्शन है अरे कोटा, अरे भाई दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, या फिर अपना आप बैंगलोर जाओ, मुंबई जाओ। तो कितना उसमें सच्चाई है?
और सच्चाई है भी, तो कितनी ग्राउंड पे कितनी प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में चल रही है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। क्योंकि कोटा को जनरली एजुकेशन के लिए जाना जाता है, ऑब्वियसली 20 साल की मेहनत है उसमें लोगों की, उसके बाद ही इमेज बनी है। कहाँ पर अभी हम स्टैंड करते हैं उस इमेज बिल्डिंग में? पल्लव, यहाँ जब से मैं आई हूँ, आई थिंक मैं बहुत ही प्रॉमिसिंग लोगों से मिल रही हूँ। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एवरी थर्ड फाउंडर जो हमारे पास आ रहा है, स्टार्टअप फाउंडर, वो कहीं ना कहीं IIT, IIMs और वैसे जगहों से, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग भी रहा और बहुत अच्छा भी मुझे लगा कि इतने अच्छे IIT BHU हो गया, IIT मुंबई का बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़कर आए हैं और दे आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, दे हैव टेकन इट फुल टाइम। तो मुझे लगता है इन दैट रेस्पेक्ट कोटा इज वेरी ब्लेस्ड, राइट। उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, मे बी बिकॉज कोचिंग फैक्ट्री है, कोटा है, सबके पास हॉस्टल्स है अपने, कोई जेम इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा है मैंने देखा। अच्छा अच्छा, फिर स्टोन तो वाले वो हैं लोग के सारे हैं। पीछे की बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, राइट। अच्छा तो जो स्ट्रांग है, ऑल्दो दे आर फ्रॉम IITs, ऑल्दो दे आर फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, बट उनको शायद वो मतलब पैसे के लिए दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, राइट। अच्छा अच्छा। तो मेनी ऑफ देम आर कमिंग बैक एंड दे आर स्टार्टिंग। तो जैसे ही मैं फर्स्ट थिंग, मे बी फॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ अंकित राठी। सबसे पहले जब मैं उनसे मिली, उन्होंने पूरे IIT मुंबई का ग्रुप से मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो बहुत सारे जो दे वर टेकिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप ना, IIT मुंबई के एलुमनाइज एंड ऑल दैट, तो दे स्टार्टेड कमिंग टू मी। और उसके अच्छा बाद बहुत सारे लोग से मिल, एक के बाद एक, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग का पार्टिंग लाइन ही होता है कि भाई और कोई हो, प्रॉमिसिंग हो, अच्छा हो, तुम्हारे सर्कल में हो, तो प्लीज कम एंड कनेक्ट विद अस, अरे, राइट। रेफरल उनको हमसे कनेक्ट बेसिस करा। बहुत स्ट्रांग है आप लोगों रेफरल, का, आप ही कह रहे हैं। अच्छा बहुत ज्यादा रेफरल, बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से, और अब मैंने वी हैव गॉट 250 प्लस स्टार्टअप्स, 270 प्लस इनफैक्ट मैं बहुत सेफली कह सकती ओह हूँ, स्टार्टअप्स दैट हैव रजिस्टर्ड ऑन iStart। तो इट इज अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट ओनली। और ये जो स्टार्टअप्स हैं, थोड़ा उस पे बात कर सकते हैं अपन कि इनका क्या, किस तरह के स्टार्टअप्स हैं? मतलब ये कोटा में बेस्ड हैं, कोटा के कस्टमर्स के लिए, कि कोटा में बेस्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, पर पूरे दुनिया या फिर पूरे राजस्थान या नेशन वाइड कस्टमर्स को डील करते हैं, या फिर किस टाइप के, किस नेचर के स्टार्टअप्स हैं ये? क्या, क्योंकि आप 270 काफी बड़ा नंबर है, क्या 270 नए करेक्ट। स्टार्टअप्स कोटा में डोमिसाइल्ड हैं, आप बोल रहे हैं? मोस्ट ऑफ देम आर डोमिसाइल्ड, मतलब दे आर रजिस्टर्ड इन कोटा, ठीक है। और ओके हर तरह ओके। के, हर स्टेज के स्टार्टअप्स हैं, सेक्टर एग्नोस्टिक है, तो हर डोमेन के स्टार्टअप्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं तो आइडिएशन फेज में है, सीड, प्री सीड से लेके सीरीज A, सीरीज B वाले भी हमारे पास अभी रजिस्टर्ड है। तो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो हर तरह के स्टार्टअप है। अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो एग्रीटेक में, इफ यू नो, इकी फूड्स इज देयर, तो फोर्ब्स इंडिया में आ गया, राइट। इफ आई टॉक अबाउट एकत्र इज देयर, ऐश्वर्या उसकी फाउंडर है, अपनी मम्मी के साथ उन्होंने फाउंड किया, अभी शार्क टैंक पर आई वो। इसके अलावा आप देखोगे कि ड्रोन्स से रिलेटेड स्टार्टअप, मोबिलिटी में ईवी से रिलेटेड स्टार्टअप, अभी और भी एडटेक पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। तो वी हैव गॉट स्टार्टअप्स फ्रॉम वेरियस डोमेन्स। तो डोमेन्स भी बहुत ही वैरिड है। तो मुझे लगता है कि, और बहुत ही स्टार्टअप्स की भी बात करें तो कुछ तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी बडिंग स्टेजेस पे हैं, कुछ है कि सस्टेनेबल बन चुके हैं, और कुछ जो है दे आर केटरिंग टू वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। तो उस लेवल के भी स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल विद रेवेन्यू। मुझे लगता है 25-30 करोड़ तक तो आराम से वी कैन से कि उतने रेवेन्यू तक के स्टार्टअप्स हमारे पास यहाँ पे बैठते भी हैं। मैं एंड आपसे वन अभी और टू थोड़ा, हैव रेज्ड अप टू 35 करोड़ और समथिंग लाइक दैट इन्वेस्टमेंट भी वाह एक दो ने वाह तो उठाया हुआ है। वाह वाह। और थोड़ा इन सक्सेस स्टोरीज पे थोड़ा बात करें तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द ऑडियंस। कुछ भी आप किसी भी एक दो स्टार्टअप्स को जानते हैं जिन्हें आपने फॉलो की है, मे बी फ्रॉम टू डिफरेंट एरियाज, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू आवर ऑडियंस। डेफिनेटली। अगर मैं सबसे पहले तो मैं ऐश्वर्या से
की बात से शुरू करूंगी। ऐश्वर्या जब आई थी हमारे पास, उनके पास सस्टेनेबल स्टेशनरीज का स्टार्टअप उन्होंने शुरू करा हुआ था। एंड दे वेर, जब कनेक्ट हुई उसके बाद शी वांटेड टू पार्टिसिपेट इन शार्क टैंक। तो उसकी बात करूं तो जस्ट शार्क टैंक से पहले पिचिंग के समय भी वी हैड प्रैक्टिस्ड राइट हियर इन आई स्टार्ट नेस्ट कोटा। और प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर भी मंथन किया हमने। इनफैक्ट एक दो पॉइंट्स जो हमने बताया था उस पे भी शी हैड स्पोकन इन दैट एपिसोड आल्सो। तो वो अच्छा। बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी, एंड नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज एक तो उसका शी कुड टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम शार्क्स, 2 शार्क्स ने उनपे इन्वेस्ट करा। इसके अलावा फिर अभी उनका इंटरनेशनल 3-4 कंट्रीज में उनका एक्सपोर्ट शुरू करा उन्होंने, दुबई में, मेनी कंट्रीज लाइक यूएस में। तो उनको डिफरेंट ज्योग्राफीज में शी कुड एक्सपैंड। ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ी, उनकी एसक्यूज बढ़ी उन्होंने। तो उनका एक बहुत अच्छा, ऐश्वर्या का मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छी स्टोरी रही हमारे आई स्टार्ट नेस्ट कोटा से। किस स्टेज में अगर मैं बात करूं कि आपसे ऐश्वर्या जो को फाउंडर है आई थिंक, या फाउंडर है, सोलो फाउंडर है? along with her mother she has founded this को फाउंडर। तो कैसे startup. आप मिले ऐश्वर्या से, और कैसे किस स्टेज पे वो जुड़े आई स्टार्ट से? थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए तो व्यूअर्स को ये पता चले कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए आपकी टीम को, और किस स्टेज, विच स्टेज इज द राइट स्टेज टू अप्रोच फॉर एग्जांपल। आई स्टार्ट से जुड़ने का she was participating in JLF, जो लिटरेरी फेस्ट होता है ना, जयपुर लिटरेचर फेस्ट जयपुर जो में, है, हाँ। उसमें हाँ शी वॉज पार्टिसिपेटिंग देयर। वहां पे हमारे आई स्टार्ट का भी स्टॉल था, तो वहां से हमारे एक मेंटर के थ्रू उन्हें आई स्टार्ट नेस्ट कोटा के बारे में पता चला। और उसके बाद शी जस्ट, वहां से आने के बाद शी हैड कम टू। उसके बाद हमने मेंटरिंग, एक बेनिफिट ये भी है पल्लव कि वी मेंटर पीपल राइट हु आर कमिंग टू अस, वी ट्राई टू कनेक्ट देम, वी गिव देम अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जीबिशंस, एक्सपोज, मेनी थिंग्स राइट। तो उनको फिर धीरे धीरे करके हमने थोड़ा बहुत, शी इज सेल्फ ड्रिवन हरसेल्फ, बट थोड़ा बहुत जो भी हमारे से हो पाया, यस वी हैड मेंटर्ड हर। और शार्क टैंक के समय भी हमने वो फोटोग्राफ भी रखा है जब शी वाज, वीडियो आल्सो we have, जिसमें we are mentoring her and she is practicing in front of us. Nice. तो उसे तो छोटा छोटा एंड अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े। उसके अलावा फॉर एग्जांपल ईसरल इज देयर, अगर ईसरल का नाम आपने सुना हो, इट इज एन थोड़ा ऑडियंस को समझाने के लिए बाय, आप बता सकें अगर क्या है ईसरल, किस सेक्टर में ईसरल एक्टिव है? हाँ, ईसरल एडटेक में है, 8, 9, 10 और कोचिंग का जी और नीट का प्रिपरेशन कराते हैं। वो भी बहुत बड़ी, अब तो इट हैज बिकम अ वेरी गुड बिग कंपनी, क्रोर्स में उनकी टर्नओवर भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बट हमारे साथ जुड़ने से एक्सपोजर, लाइक फॉर एग्जांपल इंक 42 हो गया, उसमें उन्होंने फीचर किया। वी ट्राई की योर स्टोरी में आ जाए, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ जाए, तो उस टाइप का एक्सपोजर। फिर एक्सपो वगैरह जैसे डीजी फेस्ट हो गया, तो राजस्थान के लोग, उनकी फुटफॉल्स 50,000, 60,000, 30,000 इस टाइप की होती है। डीजी फेस्ट हो गया, आईटी डे हो गया, तो उसमें आपको स्टॉल फ्री दी जाती है राइट, ताकि आप जाओ, अपने आप को एग्जिबिट करो, आप दिखाओ। तो दैट टाइप ऑफ एक्सपोजर वी कुड गिव। ई बाजार इज देयर, ई बाजार हमारी बहुत अच्छी फोरम है जिसपे आप अपने स्टार्टअप, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स दे सकते हैं। और ऑर्डर्स भी होते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोक्योरमेंट, करेक्ट। तो प्रोक्योरमेंट वेरी बिग बेनिफिट दैट वी आर गिविंग है पूरे। अगर राजस्थान की बात करें, इंडिया की बात करें, और जनरली मेरा भी थोड़ा एक्सपोजर रहा है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब इट्स एसेंशियल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है स्टेशनरी, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, बहुत तरह की चीजें प्रोक्योर करने के लिए। तो आई कैन इमेजिन कि गवर्नमेंट लेवल पे तो काफी बड़ा इसका रहता होगा साइज। करेक्ट। तो अभी जो यहाँ पे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं, अभी एक की बात चल रही है, तो
they are into text to speech, IoT, AI, उस डोमेन में they are deep tech में है, तो they are working in that. तो अभी गवर्नमेंट से बात चल रही है 23 लाख की फर्स्ट वर्क ऑर्डर, मे बी दे विल बी गेटिंग वेरी शॉर्टली. तो इस तरह की भी प्रोविजंस आर देयर. एंड अगर मैं बात करूं तो वी हैव गॉट अ क्यूरेट मैकेनिज्म पल्लव. एंड इसमें क्या होता है कि वी गिव अ स्कोर कार्ड टू द स्टार्टअप्स बेस्ड ऑन द पिच डेक, राइट. एक स्कोर कार्ड बनता है, उसमें सब कुछ वी गिव सम मार्क्स टू द स्टार्टअप्स बेस्ड ऑन कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, टीम कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, यूआई कैसा, यूएक्स कैसा, एवरी टाइप ऑफ थिंग, जितना ट्रैक्शन कैसी, रेवेन्यू स्ट्रीम कैसा, वो सारे पैरामीटर्स के ऊपर उनको कुछ मार्क्स मिलते हैं, राइट. और उसके बेसिस पर अगर 50% से लेस अगर उनके स्कोर्स हैं तब दे आर कैटेगराइज्ड एज ब्रॉन्ज कैटेगरी, राइट. उसके बाद अगर 50 to 70% में अगर उनका स्कोर्स होता है तो दैट इज सिल्वर कैटेगरी. फिर 70 to 80 इज गोल्ड. किसी को अगर जुड़ना हो आई स्टार्ट से, कोटा में जो भी इसको देख रहा है एपिसोड को, कौन सी स्टेज, कोई मिनिमम क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, या स्टार्टअप एक पर्टिकुलर लेवल पे जितना बड़ा होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है ऐसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. सक्सेस स्टोरीज से शुरू करूं क्या? श्योर. तो ईसरल वाज देयर, उसके बारे में बता रही थी. एडटेक कंपनी है और उसको लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रमोशन में बहुत हेल्प हुआ होगा मेरे ख्याल से. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो एक ईवी का स्टार्टअप है हमारे साथ, शुभम शर्मा जुड़ा हुआ है. तो ही इज इनटू ईवी एंड ऑल दैट. तो वो उसको लाइक फॉर एग्जांपल बेनिफिट लाइक मार्केटिंग असिस्टेंस उस समय 10 लाख की होती थी, वो हम दिलवा पाए, फंडिंग दिलवा पाए. तो उसकी वजह से ही सेज कि बहुत ज्यादा उसको लाइक सपोर्ट मिला टू ग्रो. एंड अभी उसको गवर्नमेंट से, यूआईटी से बहुत सारे ऑर्डर्स मिले और अराउंड 72 व्हीकल्स का बात चल रहा था. आई डोंट नो वेदर ऑलरेडी 4 व्हीकल्स हैं ये, मतलब ईवी व्हीकल्स, ऑटो, टेम्पो, बस टाइप, या ऑफ रोड व्हीकल्स इसको कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजोन, हाँ ऑक्सीजोन यहाँ पे आ रहा है, या फिर आप देख लो कि दिस प्लेस इज कमिंग अप, दैट रिवर फ्रंट इज कमिंग अप, राइट. तो वो सब जगहों के लिए अभी आई थिंक प्रोक्योरमेंट हैज बीन डन. आई थिंक वो छोटी वाली जो गोल्फ कार्ट टाइप की नैरो टाइप्स का कस्टमाइज्ड नैरो व्हीकल्स. या तो आई थिंक कि वो जो 10 लाख हम फंडिंग दिलवा पाए, उससे उसको एक इनिशियल सपोर्ट या एक ऑर्बिट ऊपर जाने का मौका मिल गया. तो दैट वे इज ऑल्सो बहुत सारे स्टार्टअप्स को इनफैक्ट इस टाइप की हेल्प मिले, बिकॉज वी हैव गिवन फंडिंग टू एटलीस्ट 35 स्टार्टअप्स फ्रॉम कोटा. तो 2 लाख से वही सस्टेनेंस से लेके 20 लाख 25 लाख तक फंडिंग पीपल हैव गॉट फ्रॉम iStart Rajasthan. And थोड़ा आप इस बारे में बता पाएंगे कि फंडिंग का किस टर्म्स एंड कंडीशन किस टाइप की रहती है, मतलब कि ये कोई इक्विटी बेस्ड रहती है, कि ये ग्रांट रहती है, कि ये एक तरह का लोन है? पहले वाली पॉलिसी में मोस्टली इट वाज डेट, राइट. अच्छा. फॉर एग्जांपल कोविड रिलीफ ग्रांट था एक 5 लाख का, जैसे ऐश्वर्या को कोविड रिलीफ मिला हुआ है और भी हमारे कुछ स्टार्टअप्स को, तो दैट वाज ग्रांट, राइट. अच्छा. लेकिन कुछ था जैसे फॉर एग्जांपल सीड फंड वाज देयर 2 लाख का, तो दैट वाज डेट. वो अराउंड 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है. मार्केटिंग असिस्टेंस 10 लाख का था, दैट वाज आल्सो डेट. पर अभी जो नई पॉलिसी आई जिसके बारे में मैं बता रही थी कि राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022, उसके अंदर ग्रांट्स बहुत बढ़ा दिए गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल जो आइडिएशन ग्रांट की मैं बात कर रही थी तो 2,40,000, और अगर विमेन फाउंडर हैं तो दैट गोज टू 3 लाख. दैट इज द ग्रांट. ऑलराइट. उसके बाद जो वाइबिलिटी सीड स्टेज पर वाइबिलिटी ग्रांट इज देयर, तो वो फिर इट इज ग्रांट 60 लाख तक जाती है, राइट. ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा ऑडियंस को बताएं आप. ग्रांट मतलब अनुदान उसे हिंदी में कहेंगे, और अनुदान की मतलब यू डोंट हैव टू पे इट बैक, राइट. गवर्नमेंट हैज गिवन यू टू यूटिलाइज. लेकिन भाई उसमें भी प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले कि आपको फंड मिलेगा तो उसका यूटिलाइजेशन कैसा करेंगे,
दे टेक ट्रांचेस में भी मिल सकता है, अच्छा, बिकॉज अभी ये अच्छा, नई पॉलिसी है तो मुझे नहीं पता कि एक बार लमसम देंगे या ट्रांचेस में देंगे, राइट? पर इसे लौटाना नहीं होता, बट इसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा कि हाउ दे आर यूटिलाइजिंग इट। जो चीज उन्होंने बोला है कि इस चीज के लिए आई विल बी यूटिलाइजिंग, तो वो चीज को थोड़ा सा अडहेयर करना पड़ेगा। बाकी ये पैसे आपको दे दिए गए, आपको रिटर्न नहीं करने, दैट इज अनुदान, राइट, अच्छा, ग्रांट। अब अगर आप जैसे बाकी की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्टार्टअप ग्रोथ फंड है, तो उसमें इट इज कि जितना आपने इन्वेस्टर से रेज किया उसका आधा आपको मिल सकता है, 50% ऑफ व्हाट यू अच्छा, हैव रेज्ड फ्रॉम द अच्छा, इन्वेस्टर, एंड देयर इज एन अपर कैप, अपर लिमिट, लाइक इट ऑफ कैन बी कोर्स, अप हाँ, टू 2 crores. So अच्छा, that is debt convertible to grant. All right, debt, ओके, अगर आपको डेट पसंद है तो आप डेट रखो, अदरवाइज इट इज कन्वर्टेबल तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। Then अच्छा, we have got startup equity fund, तो वो it again it is equity dilution पर आपको मिल सकता है, that एंड will go up to 5 crores. तो अच्छा, मैं this is, थोड़ा yeah, सॉरी प्लीज, हाँ हाँ बोले बोले। नहीं मैं बोल रहा था कि थोड़ा ऑडियंस को अगर ये थोड़ा साइज का भी आइडिया देंगे आपकी, कितना आई स्टार्ट जो कोटा है सिर्फ स्पेसिफिकली, कितना उसका एलोकेशन है, कितना बड़ा फंड है, मतलब बोथ इक्विटी वाला फंड और नॉन इक्विटी वाला, थोड़ा सा ऑडियंस को साइज के बारे में अंदेशा लगाने के लिए कि भी कितने करोड़ का, कितने लाख का ये बड़ा फंड है, मे बी इस ईयर के लिए, या फिर जो भी प्लान बनता है 3 या 5 साल का। this अभी तो मुझे नहीं पता द एग्जैक्ट अमाउंट, पर मैं बाद में बता पाऊंगी पल्लव, श्योर, मतलब श्योर, श्योर, नो, हाँ, नो करेक्ट, आई प्रॉब्लम। डोंट हैव दैट आइडिया, ओके, ओके, तो बिकॉज आई थिंक, प्रीवियस, हाँ बोलिए यस प्लीज। यस, नहीं नहीं प्लीज। तो आई थिंक आपने सक्सेस स्टोरी भी कवर कर ली, और किस तरह के कैसे कौन एक और अप्लाई कर मैं सकता है। कवर करना चाहूंगी, हम्म, एक दो चीजें और कवर करना चाहूंगी मैं आई स्टार्ट के बारे में, कि इफ यू लुक एट आई स्टार्ट प्रोग्राम, अगर अम्ब्रेला प्रोग्राम की बात करें तो इसमें स्टार्टअप के लिए तो है ही ये प्रोग्राम, राइट? इसके अलावा रूरल स्टार्टअप्स के लिए भी, द पीपल हु आर वर्किंग इन रूरल एरियाज या यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। तो एक रूरल स्टार्टअप करके एक उन्होंने अलग से बनाया हुआ है। इसके अलावा स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम भी बनाया गया है, जिसमें स्कूल के बच्चों को भी एक्सपोजर दी जा रही है और उनके आइडियाज को भी सुना जा रहा है, उनके लिए भी चैलेंजेस थ्रो किए जा रहे हैं, ताकि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए, स्टार्टअप आइडियाज लेकर आए, उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला अपार्ट फ्रॉम द एंगल स्टार्टअप काफी प्रोग्राम दैट वी आर इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग है, हैविंग, थोड़ा सा और जानना चाहूंगा मैं इसके बारे में कि ये रूरल, क्योंकि जैसे आप भी जानती होंगी, कोटा शहर में दोनों तरह की पॉपुलेशन है, एक अर्बन पॉपुलेशन है, अपर सोशियो इकोनॉमिक वाली कैटेगरी वाली, लोअर सोशियो इकोनॉमिक वाली कैटेगरी भी है शहर में ही, मैं गांव की भी बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा डीप जाना चाहूंगा इस टॉपिक पे कि अक्सर जो मेरी फीलिंग रहती है, या हम लोग जब डिस्कस करते हैं दोस्तों से, तो ये थोड़ा डिवाइड रहता है कि कोई भी तरह की फैसिलिटीज है, कोचिंग में भी ये हुआ करता था पहले, अब काफी हद तक सॉल्व हो गया है, पर अभी भी वो डिफरेंस है कि ये सारी फैसिलिटीज जो है, अक्सर ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो एक परिवार है या कोई अच्छे स्टेटस का इंसान है, उनके लिए ज्यादा एक्सेसिबल है। तो जो लोअर स्टेटस वाले लोग होते हैं कि अपने मेड के फैमिली हो गई, ड्राइवर की फैमिली हो गई, जो लोग दिहाड़िया काम करते हैं या स्लम्स में जो रहते हैं शहरों में, उन तक उसमें भी बहुत टैलेंट है। उस तक कैसे आप लोग पहुंच रहे हैं, अगर कोई प्लान है आपका, अगर नहीं है तो भी इट्स ओके, मतलब। अभी इस पे तो बहुत काम होना बचा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि जैसे कि आई स्टार्ट हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम कर रहा है, ठीक है? हब एंड स्पोक, जैसे जयपुर इज द हब, इसमें टेक्नो हब इज देयर, ठीक है? वहां से प्रोग्राम हेडक्वार्टर्ड है। हर डिवीजन, संभाग अगर कहें तो देयर आर 9 एजुकेशनल हेडक्वार्टर्स, तो हर डिवीजन में आप देखोगे कि एक एक आई स्टार्ट नेस्ट, जैसे आई स्टार्ट नेस्ट हैज कम अप, ऑलराइट। ओके, ओके, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, जो कि किसी न किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम परकुलेट तो कर रहा है, इट इज परकुलेटिंग डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वहां भी छोटा मोटा फैसिलिटीज
किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग हर स्कूल हर कॉलेज में जाकर वी आर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो यहाँ जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहां पे जाकर वी आर गोइंग आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ITI हो गया, डिप्लोमा कॉलेजेस हो गया, जितना भी आप सोच सकते हो। तो हमने वी आर गोइंग, एक एक बच्चा डिप्लोमा यहाँ पे ITI की जो कॉलेजेस हैं उसका एक एक बच्चा यहाँ पे विजिट किया है, ब्रांच बाय ब्रांच, ईयर बाय ईयर। एंड वेरी उनमें से नाइस। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करो, आप किस तो उनको 3 डेज का हमने फ्री रोबोटिक का वर्कशॉप भी दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों तक हम लोग तो पहुंच पा रहे हैं पल्लव, लेकिन अब उसके नीचे अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, राइट। ITI तक, गवर्नमेंट कॉलेजेस तक, वहां तक तो वी आर गोइंग, वी आर डूइंग द अवेयरनेस प्रोग्राम। और आज की बात करूं तो हमारे पास हर तरह के, हर स्ट्रेटा के लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, राइट। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल NULM, NRLM के लोग, NRLM की बात करूं तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है जो कि राजीविका के अंडर आता है, ठीक है। तो राजीविका को भी हमने जोड़ने की कोशिश की। NULM इज देयर, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो स्लम्स वगैरह में जो लोअर स्ट्रेटा के लोग रहते हैं ना, उनसे भी हम लोग जुड़ने की कोशिश करें, उनके लिए भी एग्जीबिशंस लगाए। और इनमें से जो मुझे अच्छे लगे मैंने स्पेशली लाके उनको, स्पेशली हम लोगों ने बैठ कर उनको iStart में एनरोल कराया। तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो हम लोग कर रहे हैं, बट जिस तरह से और जितना हमें जाना चाहिए अंदर उतना अभी नहीं जा पाए। मे बी विद पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा दिनों में आप देखोगे 2-4 साल में, बिकॉज अभी रूरल में क्या हुआ कि रूरल स्टार्टअप प्रोग्राम में मोस्टली हमने चैलेंजेस रखे, राइट। और जो भी स्टार्टअप अपने उस थीमेटिक एरियाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था, तो दे हैव डन, हेल्थ केयर वाज देयर, मतलब एजुकेशन वाज देयर, कंपटीशन टाइप, बहुत स्टार्टअप सारा कंपटीशन थीम्स टाइप। टाइप्स। तो उसमें अच्छा। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन था, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो चुने गए उसको फिर हमने डिवीजन लेवल, फिर फाइनली स्टेट लेवल। तो उस तरह से अभी काम चल रहा था। अभी गाइडलाइंस फिर से अंडर न्यू पॉलिसी आएगी और आई थिंक उसमें भी टिकट साइज फॉर फंडिंग एंड ऑल दैट आएगा, बट इट हैज नॉट येट। ओके फिर ओके। करेक्ट। और एक हमारे पास राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड्स भी होता है अंडर iStart प्रोग्राम। इसमें भी अगेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, वो लोग अपने अपने एरियाज में कोई ना कोई चैलेंज अपलोड करते हैं, और अगर कोई स्टार्टअप चाहे तो उस पे दे कैन लाइक सोल्यूशन दे सकता है। और अगर सेलेक्ट हो गया तो फर्स्ट प्राइज 5 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। हमारे अगर मैं कोटा की ये बात सिर्फ करूं तो कोटा लेवल की बात मेडकॉट, कर रहे हैं आप, नहीं नहीं, ये या स्टेट की राजस्थान बात, लेवल पे होता है राजस्थान राजस्थान? की बात करूं। अच्छा। तो इसमें भी लाइक कोटा का मेडकॉट्स इज देयर, श्रेयांश इज देयर, उसको 65 लाख का वर्क ऑर्डर या जो भी आप प्राइज मनी तो मिला है। तो दिस वेरी इज नाइस। ऑल्सो देयर अंडर द प्रोग्राम। यस, आपको ये आपको तो प्रोग्राम के। ओके, सॉरी, हाँ प्लीज हाँ बोलो। कंटिन्यू। नहीं नहीं, यस प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आपने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया है ग्राउंड पे, और आप खुद भी एक्नॉलेज कर रहे हैं काफी रास्ता बाकी भी अभी तय करना। क्या करेक्ट। 2 या 3 मेन चैलेंजेस आपको लगते हैं जो कि ओवरकम करना बाकी हैं अभी iStart प्रोग्राम को, या मे बी एट अ टीम लेवल इन कोटा, या इवन जस्ट मे बी इन अ माइंडसेट लेवल? क्या ऐसे क्या मेन चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको? जो पहला चैलेंज मैं देख रही हूँ कि जैसे डीप टेक पे कोई काम मतलब करना चाहिए, इनोवेशन उस तरह से नहीं आ रहा, सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हैं, कुछ स्टार्ट किया हुआ है, दैट क्वालिटी अभी इट हैज येट। अभी इकोसिस्टम में थोड़ा नेसेंसी है, पर विथ एक्सपोजर, जिस तरह का हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट दे रहे हैं या फिर बाहर से लोग आ रहे हैं, स्पीकर्स आ रहे हैं, रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, और वो सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं हमारे थ्रू द प्रोग्राम, राइट। स्केलेबल थिंकिंग, वो चीज अभी आई नहीं है, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है विद दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर दैट वी आर ट्राइंग टू गिव, दैट विल कम। ठीक है, तो पहला तो एक क्वालिटी ऑफ थोड़ा स्टार्टअप। ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि मे बी जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े नहीं हुए हैं, एक थोड़ा बताएं कि डीप टेक का क्या मतलब है इन प्रैक्टिकल सेंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोस्टली जो हमारे पास स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो दे आर नॉट टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स बहुत कम आते हैं,
अच्छा, राइट। ओके ओके। मैं डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, या फिर उस तरह से ना जो नॉर्मल बिजनेस, या फिर मैं वेब डेवलपमेंट कर दूंगा। तो अभी सोच बड़ी नहीं हुई, ठीक है। तो वी ओके। हैव, ठीक है, कुछ लोगों की है, दोज हु हैव फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस। अभी जैसे आईआईटी मुंबई से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे, आईआईटी बीएचयू से बहुत लोग जुड़े हैं, आईआईटी मद्रास से जुड़े हैं। तो दोज पीपल हैव दैट थॉट, मे बी वो बाहर रहकर आए हैं, उन्होंने बैंगलोर वगैरह का देखा हुआ है, एंड वो शिफ्ट कर कर आ रहे हैं। तो उनमें थोड़ा वो जो है ना स्केलेबल बिजनेस, और वो है कि हमें टेक्नोलॉजी लिवरेज करके दूर दूर तक अपने आप को एक्सपैंड करना है, करोड़ों का बिजनेस बनाना है। तो वो चीज बहुत कुछ लोगों में अभी है, ठीक है। बाकी जो अभी नए जो बडिंग है, उनमें वो सोच अभी आना बचा है। हम लोग अपने प्रयासरत हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि अब वो चीजें भी ना वी ट्राई टू गिव। तो पहला चैलेंज तो क्वालिटी, दैट इनोवेशन आए, डीप टेक को यूटिलाइज करके कुछ कर पाए बच्चे, कुछ बड़ा सोच पाए, ग्लोबल लेवल पर सोच पाए, नेशनल लेवल पर सोच पाए। तो वो चीज की अभी मेरे को चैलेंज दिख रही है। दूसरा जो चैलेंज मुझे दिख रहा है कि अभी पीपल आर नॉट टॉकिंग, राइट। कन्वर्सेशन हैज स्टार्टेड नाउ रिगार्डिंग द स्टार्टअप। तो बहुत लोग जो है ना अकेले अकेले जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, या जो वो अभी भी है। अब लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टअप आया तो एक अड्डा टाइप का स्टार्टअप, अड्डा टाइप, इट इज emerging and people have started talking. तो जब मैं उनको एक्सपोजर देती हूँ तो बोलते पेरेंट्स वेर सो अगेंस्ट, ठीक है, अस स्टार्टिंग, बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। पर अब जब आई स्टार्ट में पेरेंट को लेकर आया, या फिर हमारा न्यूज़पेपर में आ रहा है, अब आप मीडिया कवरेज करा रहे हो, तो नाउ मोर एक्सेप्टिंग। तो वो जो फैमिली वाला जो था ना, सोसाइटल प्रेशर्स और फैमिली प्रेशर नॉट टू स्टार्ट डू अ स्टेबल बिजनेस, तो वो वाली चैलेंज बहुत ज्यादा थी, है, और अभी लगता है कि थोड़ा रहेगा, जिसको हम लोग इस तरह से ओवरकम कर, राइट। तीसरा जो है, जो हमारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनको हायरिंग में क्वालिटी हायर्स मिलना बहुत मुश्किल। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जो पढ़ लिख जा रहे हैं बच्चे, दे आर रनिंग टू मेट्रो सिटीज फॉर जॉब्स, राइट। तो यहाँ पे दैट क्वालिटी हायर्स मिलना मुश्किल, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक्सपोजर अगेन, बिकॉज इट इज अ टियर 3। तो दीज आर द वेरियस चैलेंज। आपको क्या लगता है कि हम इस जर्नी में, जो कि काफी लंबी जर्नी में, अभी लगभग कितने साल और पीछे हैं अभी हम लोग उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंचने के लिए? और मेरा मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि जैसे मैं अभी अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री का एग्जांपल लूं, कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री। आई थिंक बंसल 90s में ही स्टैब्लिश हो गया था, करियर पॉइंट बंसल। बट उनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहुंचने में अर्ली 2000, जब आईआईटी में फर्स्ट सेकंड उस टाइप की रैंक्स आना स्टार्ट हो गई, पॉपुलर, रियली मीडिया में पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया ये चीज। फिर कोटा में 10,000, 50,000, 1 लाख बच्चे आपको क्या, और फिर आप देखिए वो काफी स्टैब्लिश इंडस्ट्री है, कम से कम $1 या $2 बिलियन का इंडस्ट्री है वो कोटा में इजीली। आपने वो क्या बोलते हैं, पहिया घुमाना जो स्टार्ट कर दिया है। कितना समय आपको लगता है कि 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, कितना समय लगेगा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंचने में, जब ऑटोमेटिक वो फ्लाई व्हील इफेक्ट बोलते हैं ना उसको, फ्लाई व्हील इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा अपने आप? मतलब मुझे लगता है 4-5 साल में कुछ तो स्टार्टअप्स जो मुझे दिख रहे हैं अभी, जो बता रही हूँ क्रोड्स का, जिनका ऑलरेडी हो चुका है, एंड दे आर थिंकिंग ग्लोबल, दे आर थिंकिंग बिग। तो 4-5 साल में दैट गुड स्टार्टअप्स विल बी कमिंग अप, जो कि यूनिकॉर्न लेवल तक 4-5 तो बन जाए, राइट। बाकी जो है, जो अभी जस्ट दे आर बडिंग एंड ऑल दैट, मुझे लगता है 6-7-8 साल तो लगेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव यू विल सी कि सस्टेनेबल बिजनेसेस तो 2-3-4 साल में बन जाएगा, जो कि 10-20-50 लोगों को एम्प्लॉय कर पाएगा। 4-5 साल के बाद आप देखोगे कुछ जो होगा, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एलन वगैरह सब, दे हैव ग्रोन सो बिग, दे आर यूनिकॉर्न्स, राइट। तो उस टाइप के बनने में दे विल बी लाइक 4-5 साल में कुछ और निकल जाएंगे। एंड एज यू नो, वन अंबानी, वन अदानी, इस टाइप की कंपनी 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देती है, या फिर आप देखोगे कि द काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन दे डू फॉर द नेशन, राइट। तो उस टाइप का आने में अभी थोड़ा टाइम है, बट कुछ में मुझे तो वो स्पार्क दिख रहा है। बाकी
एक दूसरे को इंस्पायर करके, एंड अगर नेटवर्किंग सही रही, सबको आपस में सपोर्ट कर पाए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई वी आर बिल्डिंग इकोसिस्टम, सपोर्ट ईच अदर, यू डोंट हैव टू compete among yourself, compete with the rest, beyond quota, think big. तो this type of सोच अभी हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ अगर हमारे आई स्टार्ट नेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट, आईटी का कोई भी प्रोजेक्ट, इट शुडंट गो आउट, बिकॉज हम में इतने सारे स्टार्टअप से सब मिलके सब कर लेंगे, राइट? तो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग डालने की कोशिश है। आई थिंक थोड़ा सक्सेस अभी मिलना शुरू हुआ है और आगे और अच्छा ही हो। वेरी नाइस। लास्ट सवाल, पर्सनली आप किस तरह अपना मोटिवेशन ड्रॉ करते हैं इस अभियान से जुड़ने के लिए और इसको चलाने के लिए? क्योंकि आई थिंक कोटा प्रोबेबली काफी कंफर्टेबल लोकेशन है, बट इसके खुद के चैलेंजेस भी हैं। जैसे आप अपन बात कर ही रहे थे माइंडसेट के बारे में, या फिर खुद की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो दैट बीइंग नॉट दैट बिग, है ना? तो आप अपने आप को पर्सनली किस तरह आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं इस स्टार्टअप में की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए? पर्सनली आई एम वेरी पैशनेट, जो भी काम करती हूँ। व्हेन आई वाज टीचिंग तो भी आई वाज दैट पैशनेट, और यहाँ तो मेरा पैशन अलग लेवल है। और उसका रीजन बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आई थिंक कि मैं नेशन बिल्डिंग, जो एक बात बोल रही हूँ, नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। अगर हमारा एक स्टार्टअप है 10 लोग और 15 लोग और 20 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, और मैं देख रही हूँ कि 2 फाउंडर्स से नाउ दे हैव ग्रोन टू 10-15 पीपल, राइट? तो दैट एक्साइट्स मी। अगर मैं फंडिंग दिलवा के उनको थोड़ा आगे नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ ग्रोथ तक ले जा पा रही हूँ, तो दैट इज एक्साइटिंग फॉर मी। जो हमारे साथ स्टार्टअप्स जुड़े हैं, जो सक्सेस स्टोरीज, यहाँ से नहीं, एनआईटी, अगर उड़ीसा की बात करूं, अगर यूपी की बात करूं, यहाँ की बात करूं, मैं कम से कम 5-6 जगह पे मेंटर्स हूँ, राइट? स्टार्टअप उड़ीसा के साथ हूँ, स्टार्टअप तमिलनाडु के साथ हूँ, मैं आईएम लखनऊ के साथ अभी मेंटर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे ग्रोइंग स्टार्टअप्स जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिनकी रेवेन्यूज अब एक अलग लेवल तक पहुंच चुकी है, उनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, राइट? एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टर्म्स में हूँ, तो दोज आर वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, और दैट इज पुशिंग me forward. And मुझे ये how it takes this whole ecosystem, how it works, अब I think after 7 years into this, I know it already. So वो भी एक बिल्ड करने का एक अलग मजा है। और कोटा की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पर्सनली इतने अच्छे फाउंडर्स मिले, और एक फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है कि इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और ये पोटेंशियल को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा भी मैं अगर 1-8 साल में और एक्सर्ट करूं तो इट कैन गो टू अ टोटली डिफरेंट लेवल। तो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम स्टोन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, टूरिज्म, आप देखोगे कि कोटा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जाना जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जान के कि कोटा में भी वो सिलिकॉन वैली वाला, बैंगलोर वाला इंजन और जो डीएनए है वो है, और आप उसको नर्चर कर रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू आई स्टार्ट कोटा एंड आई स्टार्ट राजस्थान। थैंक यू पल्लव, थैंक यू पार्थ, थैंक्स अ लॉट।